اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ نہیں جناب، ایک بار میں نے سیٹھ کو مار کھاتے بھی دیکھا ہے۔ ایک فقیر سا آدمی اس کے ہوٹل کے سامنے سے گزرا تو اس نے سیٹھ کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ سیٹھ نے بھی جواباً گالیاں دینی شروع کر دیں تو وہ فقیر ہوٹل میں گھس آیا اور پھر اس نے سیٹھ کو اتنا مارا کہ سیٹھ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں بھی وہیں موجود تھا، لیکن ہم سے ہمت ہی نہ ہوئی کہ ہم اس فقیر کو پکڑتے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس فقیر کے جسم کے گرد کوئی نورانی حالہ موجود تھا جس نے ہمیں روک رکھا تھا۔ پھر وہ فقیر اسے گالیاں دیتا اور جہنم کا ایندھن کہتا ہوا چلا گیا۔ سیٹھ کو بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا اور وہ گھر میں ایک ہفتہ پڑا ہائے ہائے کرتا رہا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے اس فقیر کے بارے میں پوچھ لیا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ روشنی کا آدمی تھا اور روشنی کے سامنے اندھیرا کیا کر سکتا ہے۔ حامد نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ سیٹھ نے یہ کالا جادو کس سے سیکھا ہے؟ کون ہے اس کا استاد؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، بس اتنا سنا ہے کہ سیٹھ بچپن میں گھر سے بھاگ گیا تھا اور کسی ایسے آدمی کے ہاتھ لگ گیا تھا جو کالے جادو کا ماہر تھا۔ اس نے اسے بھی کالا جادو سکھا دیا اور پھر سیٹھ دیوان پورا میں رہنے لگا۔ حامد نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا وہ کھلے عام یہ سب کچھ کرتا ہے؟ عمران نے پوچھا، نہیں جناب، بظاہر تو اس کا چائے کا ہوٹل ہے۔ یہ ساری کارروائی تو گھر میں رات کو کی جاتی ہے۔ ویسے اس بارے میں معلوم تو سب کو ہے، لیکن کھل کر کوئی بات نہیں کرتا۔ سب ڈرتے ہیں اس سے۔ حامد نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ ٹائیگر، اسے معاوضہ دے دو، عمران نے کہا تو حامد نے اٹھ کر سلام کیا اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ اسے لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اللہ کی پناہ، ایسے لوگ بھی رہتے ہیں اس دنیا میں، عمران نے جھرجھری لے کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر واپس آ گیا۔ ہاں، کیا یہ درست کہہ رہا تھا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر گندے لوگ بھی ہوتے ہوں گے۔ ٹائیگر نے واپس آ کر کہا، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن اب اس سیٹ برخوردار کے ذریعے کیسے آگے بڑھا جائے؟ عمران نے کہا، میں نے باہر حامد سے یہ بات کی تھی کہ ہم اس کے استاد تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو حامد نے ایک بات کہی ہے۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیا بات؟ عمران نے کہا، اس نے بتایا ہے کہ سیٹ برخوردار سونے سے پہلے انتہائی تیز دیسی شراب پیتا ہے اور اکثر بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں اس سے جو پوچھا جائے وہ بتا دیتا ہے۔ ٹائیگر نے کہا، تو پھر رات کو اس کے گھر اس وقت ریڈ کیا جائے جب وہ نشے میں ہو۔ عمران نے کہا، لیکن باس، اس کی شیطانی طاقتیں رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ ٹائیگر نے کہا، بکواس، یہ بات تم نے سوچی ہی کیوں ہے؟ سنا نہیں تم نے کہ ایک عام سے فقیر نے اس کی درگت بنا دی تھی؟ کہاں تھیں اس وقت اس کی طاقتیں؟ یہ تاریکی کی کالی طاقتیں ہیں اور ہمارے پاس پاکیزگی، وضو میں رہنا اور روشن کلام موجود ہے، اس کے مقابل یہ طاقتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، آئی ایم سوری باس۔ ٹائیگر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، آئندہ ایسا خیال بھی ذہن میں نہ لانا۔ عمران نے اس طرح غصیلے لہجے میں کہا، سوری باس، آئندہ خیال رکھوں گا۔ ٹائیگر نے کہا، اوکے، اب ہم نے اس سیٹ برخوردار سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ کوئی آدمی یہاں سے ساتھ لے لو جو ہمیں اس کے گھر تک لے جائے۔ عمران نے کہا، اس حامد کو کہہ دیتے ہیں۔ ٹائیگر نے کہا، نہیں، یہ اس کا ملازم رہا ہے، اس سے ذہنی طور پر مروب رہا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ خوف کی وجہ سے کوئی چکر چلا جائے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے باس، میں کرامت سے بات کرتا ہوں۔ ٹائیگر نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور پھر اس کی واپسی کچھ دیر بعد ہوئی۔ باس، کرامت نے کہا ہے کہ وہ اس سیٹ کو اس وقت اٹھوا لے گا جب وہ نشے میں ہوگا تاکہ وہ آپ کو معلومات مہیا کر سکے۔ ٹائیگر نے کہا، کرامت اس کے آدمی اس سے خوف زدہ نہیں ہوں گے؟ عمران نے کہا، نہیں باس، یہ موٹے دماغ کے عملی لوگ ہیں، یہ کسی جادو وغیرہ پر سرے سے یقین ہی نہیں رکھتے۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہاری بات درست ہے، یہ لوگ چونکہ عملی لوگ ہیں اس لیے پرواہ نہیں کرتے، ورنہ موٹے دماغ کے لوگ تو ان پر اندھا اعتقاد رکھتے ہیں۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا
और फिर तकरीबन 3 घंटों बाद एक आदमी ने आकर उन्हें इत्तला दी कि सेठ बरखुरदार इमारत के तहखाने में पहुंचा दिया गया है। तो वो दोनों उठकर तहखाने में पहुंच गए। यहाँ एक कुर्सी पर एक ऊंचा लंबा और मजबूत जिस्म का मालिक आदमी, जिसके सर पर बालों का टोकरा सा नजर रहा था, ढलके हुए अंदाज में पड़ा हुआ था। क्या उसे बेहोश किया गया है? इमरान ने इस आदमी से पूछा जो उन्हें यहाँ ले आया था। नहीं जनाब, ये नशे में धत है, इस आदमी ने जवाब दिया। यहाँ कोई रस्सी होगी ताकि उसे बांधा जा सके। इमरान ने कहा, यस सर, मैं ले आता हूँ। इस आदमी ने जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो रस्सी का एक बंडल लेकर आ गया तो टाइगर ने रस्सी लेकर उसे वापस भेज दिया और फिर खुद उसने सेठ बरखुरदार को कुर्सी पर रस्सी की मदद से बांध दिया। इसकी गर्दन के अकबी हिस्से में चुटकी भरो ताकि इसके जहन पर चढ़े हुए नशे का असर खत्म हो जाए। इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में किसी शराबी को नशे से निकालने के लिए ये तरीका आम था। उसने सेठ बरखुरदार की गर्दन के अकबी हिस्से में जोर से चुटकी भरी तो सेठ बरखुरदार के जिस्म को इस तरह झटका लगा जैसे सैकड़ों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट इसके जिस्म में अचानक दौड़ गया हो। तीसरी चुटकी पर उसने कराहते हुए आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और जिस्म ढलक गया। वो वाकई नशे में पूरी तरह धत था। एक और जोरदार चुटकी भरो, इमरान ने कहा तो टाइगर ने ऐसा ही किया और इस बार सेठ बरखुरदार चौंक कर सीधा हो गया। इसकी छोटी छोटी आंखें खुल गईं, लेकिन इनमें अभी धुंध सी छाई हुई थी जो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई और उसकी आंखों में शोरी चमक आ गई। मम मम, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? सेठ बरखुरदार ने उधर उधर और फिर सामने बैठे हुए इमरान और टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। तुम सेठ बरखुरदार हो, काले जादू के माहिर? क्यों? इमरान ने कहा तो सेठ बरखुरदार ने एक तवील सांस लिया। अब कहाँ का माहिर रह गया हूँ? सब कुछ तो वापस ले लिया गया है मुझसे, कोई ताकत नहीं छोड़ी, तो अब मैं कहाँ रह गया हूँ माहिर? सेठ बरखुरदार ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो लाशऊरी तौर पर बोल रहा हो। इमरान उसके बोलने के अंदाज से ही समझ गया कि नशे का असर अभी तक उसके जहन पर मौजूद है। किसने वापस ले ली हैं ताकतें? इमरान ने पूछा। बड़े उस्ताद ने। बड़े उस्ताद कालू कारीगर ने? वो बड़ा उस्ताद है, सेठ बरखुरदार ने कहा, लेकिन जैसे ही इसके मुंह से ये फिक्रे निकले इसका चेहरा यकलख्त इस तरह बिगड़ गया जैसे किसी ने इसकी गर्दन शिकंजे में ले ली हो। इसकी आंखें उबल कर बाहर आने लगीं, जबान भी खिले हुए मुंह से बाहर निकलने लगी। ये क्या हो रहा है? टाइगर ने चौंक कर कहा, लेकिन इमरान ने फौरन ही लाहौल पढ़कर उस पर फूंक मारी और उसके साथ ही सेठ बरखुरदार की हालत नॉर्मल होना शुरू हो गई। कौन है ये कालू कारीगर? कहाँ रहता है? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मम, मैं नहीं बता सकता, वो मुझे हलाक कर देगा। वो बड़ा उस्ताद है, वो पाखड़ा का बड़ा आदमी है, मैं नहीं बता सकता। सेठ बरखुरदार ने जोर जोर से सर को दाएं बाएं मारते हुए कहा। पाखड़ा कहाँ है? इमरान ने पूछा। पाखड़ा नीगोर शहर का पुराना नाम है, लोग अब भी उसे पाखड़ा कहते हैं, सेठ बरखुरदार ने जवाब दिया। तुम्हारा उस्ताद पाखड़ा में कहाँ रहता है, क्या करता है? इमरान ने कहा। वो दानिस्ता कालू कारीगर के अल्फाज मुंह से ना निकाल रहा था, क्योंकि इसने देख लिया था कि कालू कारीगर का नाम मुंह से लेते ही सेठ बरखुरदार की हालत खराब होने लग गई थी। कोई मोहल्ले में, काली देवी के मंदिर में, सेठ बरखुरदार ने जवाब दिया। इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गईं और गर्दन ढलक गई। इस पर दोबारा नशे की कैफियत तारी हो गई थी। किसी ऐसे आदमी का मालूम करो जो नीगोर पाखड़ा के बारे में जानता हो। इमरान ने टाइगर से कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ उठा और कमरे से बाहर चला गया, जबकि इमरान होंठ बंद के सामने बैठे सेठ बरखुरदार को देखने लगा, जिसके बारे में हामिद ने जो कुछ बताया था वो सब इसके जहन में घूमने लगा। अल्लाह ताला इस पर रहम करे, और क्या कहा जा सकता है। इमरान ने चंद लम्हे इसे गौर से देखने के बाद एक तवील सांस लेते हुए कहा। बास, पाखड़ा टैगोर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर आजम नगर से पहले एक बड़ा शहर नुमा टाउन है। टाइगर ने कहा। तो फिर वहां चला जाए, क्या वहां का कोई आदमी मिला है? इमरान ने उठते हुए कहा। नहीं, वहां का कोई आदमी नहीं मिला, अलबत्ता नीगोर के एक अंडरवर्ल्ड के आदमी की टप मिली है। इसका नाम हाशू है और वो मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस है। कहा जाता है कि खासा जीदार और तेज तर्रार आदमी है। टाइगर ने कहा। ठीक है, उन्हें कह दो कि उसे वापस इसके घर भिजवा दें और फिर आ जाओ।
तुम्हारी कार कहाँ है? इमरान ने बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। यहाँ मौजूद है, मैं ले आता हूँ। इसके बारे में बात हो गई है, वो उसे वापस भिजवा देंगे। आए, मेरी कार भी वापस दारुल हुकूमत भिजवा दी जाएगी, टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। एक बड़े कमरे में इस वक्त एक उधेड़ उम्र आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने मकामी लिबास पहना हुआ था और उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात मौजूद थे। वो अपने सामने फर्श पर बिछी हुई दुरी को इस तरह देख रहा था जैसे इसके सामने दुरी पर कोई आदमी बैठा हो, लेकिन बज़ाहिर दुरी खाली थी। कमरे में इसके अलावा और कोई आदमी मौजूद न था। तो फिर हमारी ये कोशिश भी नाकाम हो गई कि वो इससे बरखुरदार से कालू कारीगर का नाम न मालूम कर सके, कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने ऊंची आवाज में कहा और फिर खामोश हो गया। क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रहे? इस आदमी ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। भींट दो वरना मैं जा रहा हूं। अचानक एक चीखती हुई आवाज कमरे में गूंजी तो इस आदमी ने झककर पास पड़े हुए थैले का मुंह खोला और फिर इसमें से एक गोश्त का लोथड़ा निकालकर सामने दुरी पर फेंक दिया। चंद लम्हों बाद से लोथड़ा गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब अलखलकत आदमी बैठा नजर आने लगा जिसका सर मटके से बड़ा था। आंखें छूटी, गर्दन पहली और लंबी, जिस्म बेडोल, टांगें पकी और कस्मों जैसी थीं। इसके चेहरे पर बेपनाह कराहत नजर आ रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपने अब से भी कराहत महसूस कर रहा हो। हाँ, अब पूछें श्री रमेश। क्या पूछ रहे थे? कालोग अब तुम्हारी सारी बातों का जवाब देगा। इस मुक्के के सर वाले अजीब अलखलकत आदमी ने चीखती हुई आवाज में कहा। पाकिस्तान में हमें कोई कामयाबी मिली है या नहीं, और वो खतरनाक आदमी इमरान अब क्या कर रहा है? श्री रमेश ने कहा। ये इमरान बेहद खतरनाक आदमी है मालिक। इसे सेठ बरखुरदार से मालूम हो गया है कि पाकिस्तान में काले जादू का मरकज पाखड़ा में है और उसका मधु मंत्री कालू कारीगर है। अब वो कालू कारीगर को घेरने की कोशिश करेगा और कालू कारीगर वाकई काले जादू का कारीगर है। उसने इसके लिए एक ऐसी चाल सोची है कि ये इमरान इस हाल में फंसकर खुद ही काले जादू का शिकार हो जाएगा। इस तरह हमेशा के लिए इससे जान छूट जाएगी। कालोग ने जवाब देते हुए कहा। क्या हल है? श्री रमेश ने कहा। बहुत सादा सी चाल है मालिक, बहुत ही सादा, लेकिन ऐसी खतरनाक कि एक बार इस इमरान के वहां जाने की देर है, फिर इसका ऐसा हशर किया जाएगा कि अंधेरे कुनवे में रहने वाली चमगादड़ें भी इसके हशर पर थरथराती रह जाएंगी। कालोग ने कहा। तफसील से बताओ क्या चाल है? श्री रमेश ने गुस्सीले लहजे में कहा। आका, अगर हो सके तो एक भींट और दे दो। कालोग ने इस बार बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा तो श्री रमेश ने करीब पड़े हुए थैले में से एक और गोश्त का लोथड़ा निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया, जिसे कालोग ने इंतहाई फुर्ती से पकड़ा और दूसरे लम्हे वो लोथड़ा इस तरह गायब हो गया जैसे इसका कभी वजूद ही ना रहा। आका, बड़ी सादा सी चाल है। इमरान के साथ इसका एक शागिर्द भी आ रहा है। दोनों एक कार में सवार पाखड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में कालू कारीगर की तरफ से एक बहुत बूढ़ा आदमी पैदल घिसट घिसट कर चल रहा होगा। इसकी हालत बेहद खराब होगी। दोनों अपनी कार रोककर इसके पैदल चलने की वजह पूछेंगे तो वो बताएगा कि इसके पास पैसे नहीं हैं और वो अपनी बीमार बेटी से मिलने पाखड़ा जा रहा है। इमरान इस पर रहम करेगा और उसे अपनी कार में बिठा लेगा। इस बूढ़े के पास जो लाठी होगी इस पर सुअर की गंदगी लगी हुई होगी, जिसे ये बूढ़ा इन दोनों के जिस्मों पर लगा देगा। इसके साथ ही उनकी पाकीज़गी खत्म हो जाएगी और वो बूढ़ा 8 गंदगियों में लिपटी हुई काली सरसों उसकी कार में फेंक देगा। फिर जैसे ही ये दोनों कालू कारीगर के पास पहुंचेंगे, इस काली सरसों के असरात उन दोनों को अपनी लपेट में ले लेंगे और सुअर की गंदगी उनके जिस्मों को छू चुकी होगी। इसलिए इन दोनों के सामने आते ही कालू कारीगर उन पर भीषम का अमल करके उन्हें काले कुनवे में फेंक देगा, जहां ये एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे, क्योंकि वहां से इन्हें निजात दिलाने वाला कोई ना होगा। कालोग ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन इन गंदगियों से तो तेज़ बदबू निकलती है और वो फौरन ये बदबू सूंघ लेंगे। फिर श्री रमेश ने कहा तो कालोग मकरू अंदाज में कहकहा मार कर हंस पड़ा। आका, कालू कारीगर वाकई कारीगर है। उसने इसका इंतज़ाम पहले ही कर रखा है। ये तमाम गंदगियां चूंकि सूखी हुई होंगी इसलिए इनकी बदबू हल्की होगी, लेकिन इस बदबू को नज़रअंदाज करने के लिए कालू कारीगर का ये बूढ़ा कच्ची अदरक एक कपड़े के थैले में बांधे उठाए रखेगा और ये बताएगा कि ये अदरक वो अपनी बेटी के लिए तोहफे के तौर पर ले जा रहा है, और अदरक की तेज़ बदबू में गंदगियों की हल्की बदबू दब जाएगी। कालोग ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, कालू कारीगर वाकई कारीगर है।
اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ خطرناک آدمی عمران وہیں پاکیشیا میں ہی ختم ہو جائے گا اور یہاں اس کے آنے کی نوبت ہی نہ آئے گی، شری رمیش نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اب مجھے آگیا دیجیے آقا، کالوگ نے کہا۔ ہاں، تم جا سکتے ہو۔ شری رمیش نے تھیلے میں موجود گوشت کا آخری لوتھڑا نکال کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اور کالوگ نے ایک بار پھر مکرو انداز میں قہقہہ مارا اور لوتھڑا جھپٹ کر ایک لخت دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ عمران کی کار تیزی سے پاکھڑا شہر کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی۔ جس سڑک پر وہ جا رہے تھے یہ مین روڈ نہیں تھی، البتہ پاکھڑا شہر سے تقریباً کچھ کلومیٹر پہلے مین روڈ سے جا کر مل جاتی تھی، اس لیے اس سڑک پر اکا دکا ٹریفک نظر آ رہی تھی۔ عمران خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ ٹائیگر سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ باس، اس کالو کاریگر نامی آدمی کو ہمارے بارے میں اطلاع تو مل گئی ہوگی کہ ہم اس کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں، اچانک ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، یقیناً اس کی شیطانی طاقتوں نے اسے اطلاع دے دی ہوگی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کالو کاریگر کا نام لیتے ہوئے سیٹ برخوردار کی کیا حالت ہوئی تھی، اور میں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے سوالوں کا انداز بدل دیا کہ اسے یہ نام منہ سے نکالنا ہی نہ پڑے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ کہیں پاکھڑا سے فرار نہ ہو جائے۔ ٹائیگر نے کہا، ایسے لوگ بڑے غم میں رہتے ہیں، وہ اپنی شیطانی طاقتوں پر ہی عمل بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے بے فکر رہو۔ وہ فرار ہونے کی بجائے ہمارے خلاف کالا جادو کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، عمران نے کہا۔ باس، یہ کالا جادو تو دنیا کا گندہ ترین عمل ہے، نہ جانے یہ لوگ اس قدر گندگی کو کیسے برداشت کرتے ہیں۔ ٹائیگر نے کہا، شیطان آدمی کو پہلے اپنی طرف بلاتا ہے، جب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اسے لالچ دیتا ہے، اور جب آدمی لالچ میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ اس کی آنکھوں پر ہوس کی پٹی باندھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس آدمی کو سوائے شیطان کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان انسانیت سے گر کر برائی کی نچلی ترین سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، میرا تو خیال ہے باس کہ شیطان اس آدمی کی سوچ سمجھ کو ہی مفلوج کر دیتا ہے۔ ٹائیگر نے کہا، شیطان تو اسے ہر فریب اور حال میں پھانستا ہے، باقی سارے کام تو انسان خود کرتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا لالچ بڑھتا جاتا ہے وہ گندگی اور برائی میں اتنا ہی دھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر سڑک کا ایک موڑ موڑتے ہی عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ایک نحیف و نزار بوڑے کو ہاتھ میں لاٹھی پکڑے اور کاندھے پر میلی سی چادر ڈالے گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ارے، یہ بوڑھا چل بھی نہیں سکتا اور پھر بھی چل رہا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے قریب جا کر اس نے کار روک دی۔ بوڑھے نے کار کے بریک کی آواز سنی تو اچھل پڑا۔ اس کے جھریوں سے بھرے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے۔ اس نے اس انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ دیے جیسے اس سے کوئی بڑا قصور ہو گیا ہو۔ معاف کر دو سرکار، بوڑھے ماجھو کو معاف کر دو، بوڑھے نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ عمران نے بٹن دبا کر کھڑکیوں کے شیشے نیچے گراتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا۔ اپنی بیٹی کے پاس کھڑا جا رہا ہوں سرکار، وہ بہت بیمار ہے اور اس دنیا میں اب میری وہ ایک بیٹی ہی رہ گئی ہے، بوڑھے مانجو نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ مسلسل دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھا اور اس کا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ پاکھڑا تو یہاں سے کافی دور ہے اور آپ پیدل جا رہے ہیں، اور وہ بھی اس گرمی میں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سرکار، میں لاوارث غریب بوڑھا ہوں، یہاں قریب ہی گاؤں میں جھگی میں پڑا رہتا ہوں کیونکہ میرا داماد مجھے پسند نہیں کرتا اور میں ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے پاس بس کا کرایہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ مجھے تو ابھی اطلاع ملی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، تو میں نے گاؤں کے ایک بھلے آدمی سے تھوڑی سی ادرک مانگی اور چل پڑا، بوڑھے مانجو نے رک رک کر کہا۔ ٹائیگر، نیچے اتر کر اسے عقبی سیٹ پر بٹھاؤ اور تم بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ ورنہ شاید یہ پہلی بار کار میں بیٹھنے کی وجہ سے ڈرے گا۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر کار سے نیچے اتر آیا۔ بابا، اندر بیٹھ جائیں، ہم آپ کو پاکھڑا پہنچا دیتے ہیں، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ عمران نے کہا، نہیں نہیں سرکار، تمہاری یہ چمکتی دمکتی کار خراب ہو جائے گی، میں بس پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ بوڑھے مانجھو نے خوفزدہ سے انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ آؤ بابا آؤ، تم سے یہ کار زیادہ اچھی نہیں ہے، آؤ۔ ٹائیگر نے بوڑھے مانجو کا بازو پکڑ کر اور کار کا عقبی دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھتے ہوئے کہا تو بوڑھے نے بڑی مشکل سے اپنی لاٹھی کو بھی کھینچ کر اندر ایڈجسٹ کیا
और इसे एडजस्ट करते हुए इसने लाठी न सिर्फ इमरान की गर्दन से लगा दी बल्कि टाइगर के भी लगाई, लेकिन आखिरकार उसने इसे एडजस्ट कर ही लिया। टाइगर भी उसके साथ ही अकबी सीट पर बैठ गया तो इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। कार में कच्चे अदरक की तेज बो फैल गई थी। ये अदरक अब क्यों ले जा रहे हैं? इमरान ने कहा। क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया था कि वो गांव के एक आदमी से अदरक मांगकर अपनी बेटी के लिए ले जा रहा है। मेरी बेटी को तबखीर की बीमारी है सरकार। पेट में अफारा हो जाता है, इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। कच्ची अदरक खाई जाए तो ये बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए मैं जब भी जाता हूं तो उसके लिए भी अदरक ज़रूर मांग कर ले जाता हूं। मैं खुद भी उसे खाता रहता हूं सरकार। ये बहुत अच्छी चीज़ है सरकार, अब भी उसे खाया करें, बूढ़े मांझों ने किसी पुराने हकीम की तरह समझाते हुए कहा। हम भी खाते रहते हैं बाबा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और सरकार, ये देखें ये काली सरसों है, ये भी ले जा रहा हूं अपनी बेटी के लिए। बूढ़े मांझों ने जेब में हाथ डालकर बाहर निकाला तो उसके हाथ में काले रंग के छोटे छोटे दाने मौजूद थे। ये किस काम आती है? इमरान ने शायद इसका दिल रखने के लिए कहा। सरकार, ये काली सरसों भी इंसान के जिस्म की तमाम बीमारियों को दूर कर देती है। हमारे बड़ों ने हमें यही बताया था, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए ले जा रहा हूं, बूढ़े मांझों ने मसरत भरे लहजे में कहा तो इमरान और टाइगर इसकी अपनी बेटी से मोहब्बत पर बहुत मुतासिर हुए। आपकी सरसों काफ़ी सारी नीचे गिर गई है बाबा जी, अब कैसे उठाएंगे उसे? टाइगर ने कहा क्योंकि बूढ़े ने कांपते हुए हाथ की मुट्ठी बंद करके जब काली सरसों दोबारा अपने करते की जेब में डालना चाही तो इसका हाथ कांपने की वजह से काफ़ी सारी सरसों नीचे बखर गई थी। ओह, मैंने आपकी कार खराब कर दी, मैं हूं ही बदकिस्मत। आपने मुझ कमज़ोर और लावारिस बूढ़े पर मेहरबानी की और मैंने आपकी कार खराब कर दी। बूढ़े मांझों ने अफसुर्दा से लहजे में कहा। कोई बात नहीं बाबा जी, सफाई हो जाएगी, इमरान ने इसे दिलासा देते हुए कहा और फिर कुछ देर बाद पाखड़ा शहर का आगाज हो गया। अपने कहाँ उतरना है बाबा जी? इमरान ने पूछा। अगले चौक पर उतार देना, पास ही गली में मेरी बेटी का घर है, बूढ़े मांझों ने कहा तो इमरान ने इस चौक के करीब जाकर कार रोक दी। इसे कुछ रकम दे देना, इमरान ने एक्रेमीन लहजे में टाइगर से कहा था कि बूढ़ा माँ जो पहले से इनकार न कर दे। यस बास, टाइगर ने कहा और फिर उसने बूढ़े मांझू को कार से उतरने में मदद दी और फिर जेब से 10 बड़े नोट निकालकर उसने ज़बरदस्ती बूढ़े मांझो के हाथ में पकड़ा दिए। बूढ़ा मांझो नहीं करता रहा मगर टाइगर ने एक नहीं सुनी और जल्दी से वापस कार में बैठ गया और इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। फिर एक जगह से पूछकर वो कोई महल्ले के करीब पहुंच गए। बास, न जाने क्या बात है, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे जहन पर धुआं सा फैलता जा रहा है। अचानक टाइगर ने कहा। हाँ, मुझे भी अजीब सा एहसास हो रहा है। बहरहाल आओ, इमरान ने कार एक साइड पर करके रोकते हुए कहा और फिर वो दोनों नीचे उतरे और पूछते हुए वो काली देवी के मंदिर पहुंच गए। मंदिर के करीब ही एक बड़ा सा मकान था और उन्हें बताया गया था कि ये मकान कालू कारीगर का है। टाइगर ने दरवाजे की कुंडी बिजाई तो दरवाज़ा खुला और एक मकामी लिबास पहने आदमी बाहर आ गया। उसका सर गंजा था और आंखें बड़ी बड़ी थीं। कालू कारीगर से मिलना है, इमरान ने कहा। अच्छा आओ, इस आदमी ने एक तरफ हटते हुए कहा तो इमरान और उसके पीछे टाइगर अंदर दाखिल हुए तो इस आदमी ने दरवाज़ा बंद किया और फिर वो उन दोनों की रहनुमाई करता हुआ एक बड़े कमरे में दाखिल हो गया। इमरान और टाइगर भी अंदर दाखिल हो गए। हा, आ गए तुम, अब जाओ नर्क में। हा, कमरे में मौजूद एक बूढ़े और बड़े हुए पेट वाले उधेड़ उम्र आदमी ने, जिसके चेहरे पर शैतानियत और मक्कारी जैसे सब्त नजर आ रही थी, मकरू अंदाज में कहकहे लगाते हुए कहा। तुम कालू कारीगर हो, काले जादू के पाकिशिया में सबसे बड़े सरगना। इमरान ने इसे देखते हुए कहा। हाँ, मैं कालू कारीगर हूं, पाकिशिया का सबसे बड़ा काला। हा, और देखो मैंने तुम पर भी काला जादू कर दिया है। हा, कालू कारीगर ने जोर से कहकहे लगाते हुए कहा और उसके साथ ही इसने दोनों हाथ हुआ में उठे और फिर इमरान और टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे इसके हाथ हिलाते ही उनके जहनों पर तारीक पर्दा तेजी से फैलता चला गया हो। इमरान ने अपने आप को संभालने की कोशिश की लेकिन बेसूद और फिर यकलख्त जैसे ही ये पर्दा फैला था वैसे ही इमरान के जहन पर से सिमटता चला गया और इमरान ने इस तरह चौंक कर सामने देखा जैसे इसके सामने अभी तक कालू कारीगर मौजूद होगा।
लेकिन वो ये देख कर बे इख्तियार उछल पड़ा कि वो और टाइगर इस कमरे की बजाय किसी पुराने और इंतहाई बदबूदार कुनवे की तह में पड़े हुए हैं। पुराना सा कुनवा खासा खस्ता था और इसे ये सब कुछ इसलिए भी नजर आ रहा था कि कुनवे का दहाना जो काफी बुलंदी पर था खुला हुआ था और दिन की तेज रोशनी ने इस गहरे कुनवे को तह तक रोशन कर रखा था। और इमरान ये रोशनी देखते ही समझ गया कि वो सारी रात उस कुनवे की तह में पड़े रहे, क्योंकि वो कल शाम को इस कालू कारीगर के मकान पर पहुंचे थे और अब रोशनी होने पर उन्हें होश आया था। ये सब क्या है? ये सब कैसे हो गया? इमरान ने उठते हुए कहा और उसके साथ ही इसने बे-इख्तियार रोशनी का कलाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। इसके ज़हन से जैसे अल्फाज यकसर मादूम हो गए थे। उसने काफ़ी देर तक कोशिश की, लेकिन यूँ लगता था जैसे इसकी याददाश्त से वो रोशन कलाम यकसर गायब हो चुका हो। इसीलिए इसे टाइगर के कराने की आवाज़ सुनाई दी और फिर टाइगर भी एक झटके से उठकर बैठ गया। वो हैरत से इमरान और उस कुनवे को देख रहा था। ये सब क्या हो गया है बास? टाइगर के मुंह से बे-इख्तियार निकला, वो कोई ना कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से हम इस गंदे कुनवे में पहुंच चुके हैं। इमरान ने कहा, हाँ, होश आ गया तुम्हें? ये भी मेरे कहने पर आया है, वरना तुम इस तरह बेहोशी के आलम में पड़े पड़े नर्क में पहुंच जाते। अब देखा कालू कारीगर का काम। तुम जो अपने आप को बड़ा महान समझ रहे थे, कैसे काबू में किया है तुम्हें। हा, चले थे कालू कारीगर को खत्म करने। हा, अब तुम यहीं एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाओगे। इस काले कुनवे में न तुम्हें रोशनी का कलाम याद होगा और न ही तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे तुम काले जादू से निजात पा सको। मैंने भीषम को कह दिया है कि वो तुम्हारी ताकत को कमज़ोर करता जाए और अब तुम यहीं एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाओगे। कुनवे के दहाने पर इस कालू कारीगर की शक्ल दिखाई देती रही और उसकी बातें भी सुनाई देती रही। इसके चेहरे पर कामयाबी की बेपनाह मसर्रत थी और आंखों में तेज चमक उभर आई थी। तुमने ये सब किया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वैसे वो खासी कमज़ोरी महसूस कर रहा था। तुमने इस बूढ़े मांझो पर रहम खाकर उसे कार में बिठा लिया था। वो मेरा आदमी था। उसने लाठी पर गंदगी मिल रखी थी जो उसने तुम्हारे जिस्मों से लगाई। उसने काली सरसों को 8 गंदगियों में भिगो रखा था और वो उसने तुम्हारी कार में डाल दी और तुम्हारा वो वज़ू और पाकीज़गी ख़त्म हो गई और भीषम को तुम पर काबू पाने का मौका मिल गया और फिर तुम्हें इस काले कुनवे में डाल दिया गया। ये कालू कारीगर की चाल थी और तुम जो अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हो इस चाल में फंस गए और अब तुम यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। कोई रोशनी की शख्सियत तुम्हें इस काले कुनवे से बाहर नहीं निकाल सकेगी और न ही तुम्हारी मदद कर सकेगी। अब तुम्हें मरना है और बस। कालू कारीगर ने कहा और उसके साथ ही इसका चेहरा दहाने से मिट गया। अलबत्ता इसके मकरू कहकहों की आवाज़ दूर तक जाती हुई सुनाई रहती रही। बास, ये पुराना कुनवा खासा खस्ता है, हमें इससे बाहर खुद ही जाना होगा। टाइगर ने कहा तो इमरान बे-इख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन यह बहुत गहरा कुनवा है और हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम ऊपर पहुंच सकें। इमरान ने कहा, बास, हाथों और पैरों से कोशिश तो की जा सकती है, टाइगर ने कहा। Like, comment, share, press the bell icon.